A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of the class 12th accountancy. As you know very well, in the last few videos, we discussed a lots of the important theoretical as well as the practical topics related to the first chapter of the class 12th accountancy, that is an financial statement of not-for-profit organization. In this chapter, we discussed the short answer type question as well as the practical questions related to the preparation of the receipts and payment account, preparation of the income and expenditure account without adjustment, and the questions related to the specific funds. And you know very well, there are basically two types of the fund maintained by the not-for-profit organization, and you can see that how not-for-profit organization maintain the specific funds for their organization. As well as in the last video, you can see that how we will treat the entrance fees in the financial statement of NPO, as well as we discussed the questions related to the subscription. And you know very well how we will find out the subscription received, how we will find out the amount credited as a subscription in the income and expenditure account with the help of the given format. As well as we discussed the very popular questions, that is in consumable goods, how we will find out the cost of consumable goods with the help of the creditors of the materials, and well as the payment to the creditors as an advance. So these types of the question helps to the identify and helps to the find the different types of the adjustments in the preparation of the income and expenditure account and the balance sheet of the not-for-profit organization. So in today's video, firstly we discussed the very important questions which are related to the question number which are related to the subscription, and the question is question number 16. And this question is very important question for us. So the first question is question number 16 of your book. Okay, and the question is, calculate the amount of subscription to be credited to the income and expenditure account for the year ended 31st March 2020, and the information is subscription arrear on 1st April 2019 is 45,000, and especially question में कहा है out of which 5,000 was not recoverable. And number 2, total subscription received during the year ended 31st March 2020, that is in 6 lakh, including 32,000 for 18-19, 30,000 for 2021, and 20,000 for 21-22, and 5,000 for 22-23. सो टोटल सब्सक्रिप्शन आपको मिला 6 लाख रुपए, जिसमें कि प्रीवियस ईयर का है 32,000 और करंट ईयर का उसमें लिखा हुआ है क्लियरली 2020 एंड 21, यानी नेक्स्ट ईयर के लिए लिखा हुआ है दैट इज इन 30,000, नेक्स्ट के नेक्स्ट ईयर का है 20,000, एंड नेक्स्ट के नेक्स्ट ईयर मतलब 3 साल बाद का भी पैसा आपको एडवांस मिल गया, दैट इज इन 5,000. उसके बाद लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 1st April 2019 इज 30,000 इंक्लूडिंग 10,000 फॉर 2020-21, एंड सब्सक्रिप्शन इन एरियर एज ऑन 31st March 2020 is 70,000. So in this question you can see that firstly we write down the subscription received during the year, यानी आपको ड्यूरिंग द ईयर में कितना सब्सक्रिप्शन का पैसा मिला. सो विद द हेल्प ऑफ these information we can see that the total subscription received during the year is 6 lakh, and after that we deduct that is an outstanding subscription for 2018-19, that is in beginning is 32,000 previous year का है, and for the next year
दैट इज एन आउटस्टैंडिंग सॉरी ये एडवांस है ना, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे माइनस एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर 2018-19 for 2021, sorry for that, 2021 to 22 and 22 to 23, ये next 3 year का पैसा है and the value is 2021 is 20,000, 2021-22 is 20,000 and it will be a 30,000 and next के next year का पैसा है आपका 5,000. तो टोटल एडवांस है, ये एडवांस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द नेक्स्ट ईयर, फॉर द नेक्स्ट ईयर का पैसा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन एट एंड. टोटल कितना है आपका 55,000. इसको भी हम लोग क्या करते हैं माइनस. उसके बाद लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 1 अप्रैल 2019 30,000, लेकिन उसमें से सिर्फ इंक्लूड कितना है, इंक्लूडिंग 10,000 फॉर 2021, जिसमें से 10,000 रुपए आपका नेक्स्ट ईयर का है. तो अब अगर आप जब ऐड करते हो एडवांस सब्सक्रिप्शन एट बिगनिंग का ऐड करते हो, तो उसमें आप टोटल अगर आप देखो तो टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है 30,000, जिसमें से अभी भी नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड कितना है 10,000. तो करंट ईयर का एडवांस कितना होगा 20,000. और क्वेश्चन में तो बहुत क्लियरली लिखा है सब्सक्रिप्शन इन एरियर एज ऑन 31 मार्च 2020, यानी ये है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड. कैसे निकलेगा सब्सक्रिप्शन एट एंड, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा. ये थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा. कैसे, इफ यू कैन सी दैट 35, yes, अब you can see that subscription in arrear as on 31st March 2020, it means current year का आउटस्टैंडिंग आपका कितना है 70,000, लेकिन उसमें आपको पता है कि प्रीवियस ईयर का भी पैसा इंक्लूड है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का कितना है 32,000 और बिगनिंग की कोई वैल्यू दी हुई है. यस, बिगनिंग में आउटस्टैंडिंग कितना था 45, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का कितना था 45 और क्लियरली लिखा है आउट ऑफ विच, इट मींस जब हम आउटस्टैंडिंग एट एंड फाइंड आउट करते हैं तो आपको पता है कि 70,000 रुपए जो पैसा है एट एंड का है, उसमें बिगनिंग का कितना पैसा इंक्लूड है. तो यू विल फाइंड आउट कि बिगनिंग का आउटस्टैंडिंग कितना था. बिगनिंग का आउटस्टैंडिंग था 45,000 और उसमें से कह रहा है 5,000 नॉट रिकवरेबल, जिसमें से नॉट रिकवरेबल कितना होगा, कितना नहीं मिल सकता 5,000. तो कितना मिलने के चांसेस हैं 40,000. उसमें से कितना मिल चुका है, कहां गया ये 32,000. तो स्टिल आउटस्टैंडिंग कितना है 8,000, यानी इसमें दैट इज एन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग में कितना प्रीवियस ईयर का वो 8,000, बचा कितना 62,000. इसको आप सॉल्व करिए. आई होप इट इज given the true answer for you, that is an 6 lakh माइनस करना होगा उसमें 87,000, तो ये आपका आएगा 5,13,000 और उसमें ऐड करना होगा 82,000 आपको ऐड करना है 6 lakh. So this the value is 6 lakh, but 6 लाख तो आपकी इनकम हुई, आपको टोटल कितना मिला 6 लाख रुपए, लेकिन उसमें आपने देखा होगा उसमें से 5,000 आपका स्टिल नॉट रिकवरेबल. तो नॉट रिकवरेबल होता है ये आपकी इनकम नहीं होगी. नॉट रिकवरेबल इट मींस दिस अमाउंट विल नॉट बी पार्ट ऑफ योर इनकम. सो हम लोग क्या करेंगे एज अ बैड डेब्ट्स मान लेंगे, यानी अब आपको कितना पैसा मिलेगा ओनली 5,95,000. and this value is amount credited to income and expenditure account. ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ट्रबल करेगा कि 70,000 आउटस्टैंडिंग था, ओके, उसमें से 8,000 आपको 8,000 मिला है, नहीं मिला है, यानी आउटस्टैंडिंग जो टोटल आउटस्टैंडिंग 70,000 है, उसमें से 8,000 किससे रिलेटेड बिगनिंग का. कैसे, बिगनिंग में 45 था, नॉट रिकवरेबल 5,000 है, तो 40,000 मिल सकता था, लेकिन बिगनिंग में आपको मिला कितना है 32, तो अब स्टिल आउटस्टैंडिंग कितना है 8,000.
तो आउटस्टैंडिंग एट एंड में कितना पैसा बिगनिंग का है 8,000, तो करंट ईयर से कितना रिलेटेड है आपका 5,000, करंट ईयर से कितना रिलेटेड है सिर्फ 62,000। ओके, सो उसको नोट कर लो। एंड नाउ वी आर मूविंग टू द फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग राइट डाउन करते हैं दैट इज एन बैलेंस शीट ऑफ जिस भी एनपीओ का है, उसके बाद राइट डाउन करते हैं एज एट जिस डेट को हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, और उसके बाद हम लोग फॉर्मेट ड्रॉप करते हैं। एंड यू नो वेरी वेल इन लेफ्ट हैंड साइड वी राइट डाउन द लायबिलिटीज, इन दिस साइड वी राइट डाउन द एसेट्स। सो ये फॉर्मेट बन के आपका तैयार हो गया। बट इसमें आइटम्स कैसे शो करते हैं ये भी कुछ शॉर्ट फॉर्म में हम आपको समझा दें। इन द लायबिलिटी साइड हम लोग लिखते हैं कैपिटल फंड, और उसमें ऐड करते हैं सरप्लस, और अगर डिफिसिट होता है तो उसको क्या करते हैं माइनस। प्लस करते हैं हम लोग लाइफ मेंबरशिप फीस होती है तो उसको हम लोग ऐड करते हैं, ठीक। और किसी भी तरह का अदर जनरल इनकम इसमें ऐड किया। उसके बाद इधर हम लोग बात करें तो इधर हम लोग कैश एंड बैंक बैलेंसेस को लिखते हैं, और जो भी हमारी एसेट्स हैं, फिक्स एसेट्स हैं एनपीओ उसको लिखते हैं, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके लिखते हैं। और अगर कोई जनरल फंड इन्वेस्टमेंट है तो उसको यहाँ लिखते हैं, और अगर हमने कोई जनरल फंड क्रिएट किया है तो इट विल पार्ट ऑफ द कैपिटल फंड। और अगर हमने कोई स्पेसिफिक फंड क्रिएट किया हुआ है फंड तो उसको हम लोग लायबिलिटी में लिखते हैं। उसमें पता ही कौन कौन से आइटम्स ऐड और लेस होते हैं। और हम लोग स्पेसिफिक फंड को अगर हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है तो उसको हम लोग यहाँ ऐड करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको पता है कि हम लोग स्पेसिफिक डोनेशन लायबिलिटी साइड में लिखते हैं, और इंडोमेंट फंड है इट इज ऑल्सो shown in the liability side of the NPO's balance sheet। और अगर किस तरह का लीगेसीज हैं उसे भी हम लिखते हैं। और यहाँ पे हम लोग एंट्रेंस फीस भी ऐड कर सकते हैं, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे शो कर सकते हैं एंट्रेंस फीस, ठीक है। ये कैश एंड बैंक बैलेंस क्लोजिंग होता है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो यू नो वेरी वेल लास्ट में तो मैं टोटल करना ही है। इन एसेट साइड यू नो वेरी वेल प्रीपेड सैलरी अभी हम लोगों ने दिखाया आपको, और अगर आउटस्टैंडिंग होगा तो लायबिलिटी में जाएगा। अगर हमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, अगर कोई सब्सक्रिप्शन जो हमने रिसीव नहीं किया है तो उसे हम लोग एसेट साइड में शो करते हैं। तो दिस इज एन फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द एनपीओ। ओके, और भी बहुत सारे आइटम्स हैं जो टाइम टू टाइम अगर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको चीजें मिलती जाएंगी। Now we are moving to the one more doubt question from your side, that is in question number 14A. 14A says that from the following particulars calculate the amount of subscription to be credited to the income and expenditure account for the year ended 31st March 2019 and show the item in the balance sheet as that date। आपको बैलेंस शीट भी बना के दिखानी है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितनी वैल्यू जाएगी वो आपको फाइंड आउट करना है। विद द हेल्प ऑफ दीज इंफॉर्मेशन फर्स्ट ऑफ ऑल you know very well we write down, firstly we dictate the question, that is in subscription in a year on 31st March 2018 is 12,500, subscription received in advance on 31st March 2018 for the year ended 31st March 2019 9,000, total subscription received during the year 31st March 2019 is 4,60,000, in which 10,000 for the year ended 31st March 2018, 8,000 for the year ended 31st March 2020, and 3,000 for the year ended 31st March 2021. And now last subscription outstanding for the year ended 31st March 2019 is 20,000.
So first of all, we have to find out the amount credited to income and expenditure account with the help of the given format. So first of all, we write down the amount received during the year. During the year हमें कितना सब्सक्रिप्शन मिला? Amount of subscription received during the year is 4,60,000. And according to the information, 10,000 is related to the past year. So उसको हम क्या करेंगे? माइनस outstanding at beginning, which are related to the 31st March 2018. Previous year से कितना है? 10,000. उसको हम लोग क्या करेंगे? माइनस. फिर लिखा है 8,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020. इट मींस नेक्स्ट ईयर से कितना रिलेटेड है? इसे हम लोग क्या बोलेंगे? एडवांस एट एंड. इसको भी हम लोग क्या करते हैं? माइनस. इसमें 3 साल की इंफॉर्मेशन है. एक 2020 और एक बार 2021. तो 31st March 2020, 31st March 2021. 31st March 2020 की इंफॉर्मेशन है 8,000 और 21 की है 3,000. टोटल इज 11,000. आप माइनस कर दो. नेक्स्ट इज गिवन subscription received in advance on 31st March 2018 for the year ended 31st March 2019. ये क्या है? एडवांस एट बिगिनिंग है. तो उसको हम लोग क्या करते हैं? एडवांस एट बिगिनिंग को हम लोग बेसिकली प्लस करते हैं. ठीक है. बिगिनिंग में कितना एडवांस था? 9,000. और सब्सक्रिप्शन इन एरियर ऑन 31st March 2018 इसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग. तो ऑलरेडी बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग टोटल था 12,500. मिला कितना है आपको? 10,000. तो 10,000 मिल गया है. अभी भी स्टिल 2,500 इज रिमेनिंग. इसीलिए वो बोला है 20,000 जो है वो करंट ईयर से रिलेटेड है. उसे हम क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग एट एंड. दैट इज इन 20,000. क्योंकि उसके आगे वर्ड क्या यूज है? उसके आगे वर्ड यूज है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2000. फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 मतलब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है. एज ऑन वर्ड है मतलब उसमें टोटल इंक्लूड है. और 1890 लिखा है तो वो भी करंट ईयर का ही है. अब इसको सॉल्व करो तो आ जाएगा 21 माइनस करना है 460 में 21. तो ये हो जाएगा 953 और 29 प्लस करना है तो ये हो जा रहा है आपका 8 and 6 468. Yes, the right answer is 4,68,000 and this amount will be credited to the income and expenditure account. Amount credited to income and expenditure account. And the doubt is that, sir, how we will show these items in the balance sheet of the NPO? So you can see that इसमें अगर हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो ओपनिंग बैलेंस शीट कब फॉर्म होगी? ऑन 1st अप्रैल. ये फॉर्म होगी ऑन 1st अप्रैल 2018 को फाइंड होगी. तो जब उसकी बैलेंस शीट हम लोग फाइंड आउट करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, तो उसमें बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग मिला कितना है? 10,000. बट स्टिल आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का कितना था? 20,000. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज 20,000 और एडवांस सब्सक्रिप्शन था आपका. एडवांस सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग का कितना था? 9,000. ये तो ओपनिंग बैलेंस शीट. एंड जब हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट की बात करेंगे विच आर प्रिपेयर्ड ऑन 31st March 2019 तो उसमें बेसिकली हम लोग क्या करेंगे? ध्यान देंगे. पहला तो एडवांस सब्सक्रिप्शन वो तो क्लियरली दिया है. एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना? 11,000 जिसमें से 8,000 नेक्स्ट ईयर का है, 3,000 नेक्स्ट के नेक्स्ट ईयर का. एंड देयर आफ्टर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की अगर हम लोग बात करें सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दैट इज इन 20,000 एट एंड. तो करंट ईयर का है तो उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर का भी लेंगे. 2017-18 और 18-19 दोनों का आउटस्टैंडिंग है. 17-18 का आउटस्टैंडिंग कितना है? बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग 20 मिला 10 बचा कितना है? 10. और
करंट ईयर का कितना है 20,000. टोटल आउटस्टैंडिंग एट एंड इज 30,000. सो दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन, यहाँ छोटी सी मिस्टेक हुई, सॉरी फॉर दैट. यहाँ पर अगर आप देखो बिगनिंग का आउटस्टैंडिंग कितना था 12,500 है, नॉट 20,000. ओके, मिला 10,000 है. ये आउटस्टैंडिंग कितना है 2,000 है. सावधानी घटी दुर्घटना घटी वाला कहानी है. अगर छोटा सा मिस्टेक होगा तो यू विल डिस्ट्रॉय योर आंसर. ओके, सो प्लीज नोट डाउन. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, टू द adjustment of outstanding and prepaid expenses, and this is in question number 20 of your book. ठीक है, ये क्वेश्चन रिलेट करता है आपका एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड, या जिसे हम एडवांस कहते हैं एक्सपेंसेस. ऑलरेडी हम लोगों ने इसको इस टॉपिक्स पे क्वेश्चन सॉल्व भी किए हुए हैं. तो जैसे क्वेश्चन दिया है 20, सैलरी पेड इन कैश अमाउंटेड टू 40,000. Ascertain the amount chargeable to income and expenditure account for the year ending 31st March 2021 from the following additional information. So you can see that हमने सैलरी कितना पे किया है, सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर सैलरी पे किया हमने 40,000. और आउटस्टैंडिंग सैलरी एट बिगिनिंग, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सैलरी गिवन है, उसको माइनस करेंगे. आउटस्टैंडिंग सैलरी एट इन, उसको क्या करेंगे प्लस करेंगे. प्रीपेड सैलरी एट बिगिनिंग एंड प्रीपेड सैलरी एट एंड. इसमें अपोजिट होता है, बिगनिंग को ऐड करते हैं, एंड को माइनस करते हैं. ठीक, एंड द वैल्यू इज गिवन. आउटस्टैंडिंग सैलरी इज बिगनिंग इज 3,000, एंड इज 4,500. प्रीपेड सैलरी एट बिगनिंग इज 1,800 एंड एट एंड इज 1,400. अब आप इसको सॉल्व करोगे, सो 40,000 में 4,500 में 1,800 प्लस करना है, यानी 40,000 में आपको प्लस करना है 6,300 प्लस करना है, तो ये आ जाएगा आपका. और माइनस कितना करना है 4,400, 41,900. ओके, सो दिस वैल्यू विल बी टेकन एज एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या होगा. आइए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं विच आर रिलेटेड टू द कंज्यूमेबल गुड्स. इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं बेसिकली. ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25. Question number 25, okay, and this question is related to the material consumed, consumable goods जिसे कहते हैं. Question number 25. उसमें क्लियरली लिखा हुआ है हाउ मच अमाउंट विल बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन द फॉलोइंग केस, एंड द इंफॉर्मेशन इज गिवन. अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी परचेज 34,000, क्रेडिटर्स बिगनिंग का 3,000, एंड का क्रेडिटर्स से 4,200, ओपनिंग की स्टेशनरी 2,500, एंड की स्टेशनरी 2,800. सो पहले हम नोट डाउन करेंगे अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी. हमने कितना पे किया स्टेशनरी के लिए
वी हैव टू पे द 34,000 फॉर स्टेशनरी। वो नोट डाउन किया, क्योंकि स्टेशनरी क्या है, आपकी कंज्यूमेबल गुड्स है। उसके बाद नेक्स्ट गिवन है क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, तो क्रेडिटर्स एट बिगनिंग माइनस होगा, क्रेडिटर्स एट एंड क्या होगा आपका प्लस होगा। उसके अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जब आप क्रेडिटर्स को ओपनिंग करोगे तो यह आएगा परचेज ऑफ स्टेशनरी। तो क्रेडिटर्स बिगनिंग का कितना है आपका 3,000, एंड का 4,200, तो परचेज कितना आ जाएगा 4,400 ग्रेटर है 35,200। फिर इसमें आपको पता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऐड करेंगे और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इज 2,500, क्लोजिंग इज 2,800। ठीक है, तो बेसिकली हमें 300 क्या करना है, माइनस करना है, तो यह जाएगा 34,900। यस, द राइट आंसर इज 34,900। यह जाएगा कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम, और इसको कहां दिखाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड। ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जामिनेशन में काफी हेल्प करेंगे। आइए क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। एंड दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। ओके, द क्वेश्चन नंबर 17, this is also the question asked by you, that is a subscription received during the year 31st March 2017 by Hyderabad Arts Club, whereas under 3 साल की सब्सक्रिप्शन गिवन है 5,000, 1,08,000, 3,000 and total number of members is 240 and annual subscription of 500. Subscription outstanding at beginning is 9,000 and show the amount of subscription in the income and expenditure account for the year ended 31st March 2017 and in the balance sheet as that date. So first of all हम लोग क्या लिखते हैं, total subscription received during the year, आपको during the year कितना सब्सक्रिप्शन मिला, तो टोटल सब्सक्रिप्शन आपको कितना मिला during the year is 1,16,000। उसमें से बिगिनिंग का पैसा कितना था 5,000 माइनस कर दो, और एडवांस एंड का कितना था, मतलब नेक्स्ट ईयर का पैसा कितना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज 3,000। उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है कि कितना अमाउंट क्रेडिट करना है, अमाउंट क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विच आर बेस्ड ऑन द मेंबर, दैट इज इन 240 मेंबर एंड देयर आर 500 rupees is a subscription fees. So the total amount is 1,20,000 जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट पे शो होगी। तो सिंपल है, लेकिन आपको इसमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का कितना था 9,000, मिल गया है 5,000, 4,000 अभी भी स्टिल आउटस्टैंडिंग है। और अगर आप एडवांस एट बिगनिंग की बात करो तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। हाँ, बिगनिंग का आउटस्टैंडिंग दिया है तो उससे पता गया बिगनिंग आउटस्टैंडिंग 9 था, 5 मिल गया, 4 अभी भी बाकी है। अब आप क्या कर सकते हो, आउटस्टैंडिंग एट एंड फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट करोगे, अगर आप इन सबको माइनस करो तो यू विल फाइंड आउट टू 1,16,000 बट 120 होना चाहिए, तो आउटस्टैंडिंग एट एंड इज 4,000। तो ये आपका क्या आया, 4,000 इज अ बैलेंसिंग फिगर, ये हुआ आपका बैलेंसिंग फिगर, ये आपका आंसर होगा कि यू कैन सी दैट हाउ वी विल फाइंड आउट द आउटस्टैंडिंग एट एंड। इस क्वेश्चन में एडवांस एट बिगनिंग नहीं था तो उसको हम लोगों ने इग्नोर कर दिया है, एडवांस हाँ बिगनिंग नहीं था उसको इग्नोर कर दिया। अब इसको बैलेंस शीट में कैसे शो करोगे, when you draw the balance sheet of this question, पता ही है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट्स में शो होता है और एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी। एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है, दैट इज 3,000
एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की बात करें तो उसमें दोनों ईयर का इंक्लूड होता है, करेंट ईयर एज वेल एज द प्रीवियस ईयर। तो उसमें अगर हम करंट प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग बात करें करंट ईयर, तो करंट ईयर का तो क्लियरली है कि आउटस्टैंडिंग एट एंड इज 4000, और प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग की बात करें तो कैसे फाइंड आउट होगा? प्रीवियस में आपका ओपनिंग बैलेंस कितना था? ओपनिंग अगर आउटस्टैंडिंग की बात करें इज 9000, लेकिन अगर आपको मिला कितना है? आपको मिला है 5000, तो स्टिल आउटस्टैंडिंग इज 4000। और डिफरेंस कितना आया था इसका? Oh my God, यहाँ मिस्टेक हुई है। आउटस्टैंडिंग एट एंड इज नॉट 4000, इट इज एन 1,08,000, इट इज एन 12,000, इट इज एन कैलकुलेशन मिस्टेक। ओके, सो 160 में जब 8 माइनस करोगे तो 108 आएगा। 108 और 120 का डिफरेंस क्या आएगा? 120 माइनस 108, ये आएगा आपका 12,000। सो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है? 4000, और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है? 12,000। प्रीवियस ईयर का कैसे आएगा फाइंड आउट करो। आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का कितना था? 9000, जबकि आपको रिसीव कितना हुआ है? 5000, तो अभी भी 4000 क्या है? स्टिल आउटस्टैंडिंग है, अभी भी 4000 रुपए क्या है? बाकी है। सो व्हेन यू ड्रॉ द बैलेंस शीट, सो द आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन which will be write down in the balance sheet, that is in 16,000. Okay, so please note down. So I hope today we solve a lots of the question of the subscription. So आज के लिए इतना ही. Thank you. Take care. Goodbye.